تلنگانہ وکلا بڑے پیمانے پر BRS کی تائید کا اعلان لیگل سیل پروگرام وحید احمد ایڈوکیٹ سابق رکن وقف بورڈ نے بھی مسلم وکلا کی جانب سے BRS پارٹی کی تائید کا اعلان کیا اور KCR کے کارناموں کو وکلا کے حق کے کاموں کو سہرایا اور گزارش کی کہ ایک مسلم وکیل کو ہائی کورٹ جج بنانے کے لیے مرکز پر دباؤ ڈالا جائے اور ریاست میں ایک مسلم وکیل کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنانے کی گزارش کی جائے۔ راؤ صاحب کے اوپر سپورٹ کرتا ہوں میں۔ واقع ہندوستان میں تاریخ میں ایسا چیف منسٹر صدیوں میں نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ کلوا-کنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب وہ شخصیت ہے جو تمام مذہب کو لے کر ترقی کرتے ہوئے تلنگانہ ریاست کو نمبر 1 ریاست بناتے ہوئے آگے کامزن ہے، انشاءاللہ گولڈن تلنگانہ کے قریب ہے۔ میں وہ دور یاد دلاتا ہوں جس وقت کووڈ آیا تھا، ہندوستان میں کوئی ریاست نہیں جو وکلاؤں کو مدد کے لیے آگے آئے۔ یہ واحد ریاست ہے جنہوں نے 100 کروڑ روپے جاری کرتے ہوئے ہمارے لیے انشورنس بھی دیا اور ہمارے لیے اس نازک دور میں ہمارے مسائل کو حل کیا۔ میں کیونکہ وقت بہت کم ہے، میرا بھی ایک چھوٹا سا سجیشن تھا۔ ہمارے یہاں پر لیگل کے ماہرین موجود ہیں، میرے کمیونٹی کا ایک آواز ہے، میں ہمارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ونود صاحب بھی یہاں موجود ہے، موہن راؤ صاحب بھی یہاں موجود ہے، کیونکہ ہمارے مسلم وکلا کی ایک خواہش ہے کہ تلنگانہ ریاست میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ایک مسلمان کو دیا جائے، اور ایک خاص کر کے گزارش ہے کیونکہ آنے والے انشاءاللہ ضرور BRS پارٹی حکومت بنائے گی، وزیر اعلیٰ کلوا-کنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب تیسری بار حکومت قائم کریں گے۔ ایک چھوٹی سی گزارش یہ تھی کیونکہ 9 سالہ دور میں مرکز کی سرکار نے ایک مسلم کو ہائی کورٹ میں اب تک جج نہیں بنایا، 2 بار نام گیا اور رک گیا۔ میں ونود صاحب سے اور موہن راؤ صاحب سے، کالورو وینکٹیش صاحب سے خواہش کرتا ہوں اس بار زور لگائیں اور اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں۔ میں شکریہ۔ థ్యాంక్ యూ న్యాయవాదులందరికీ రిక్వెస్ట్, అందరు కూర్చోండి। నేను అప్పటి నుండి చెప్తూ వస్తున్నా, మన మీటింగ్ చాలా క్రమశిక్షణతో వారిని రానివ్వాలి పైకి, ఎవరు కూడా లేవద్దు, లేచి స్వాగతం। సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది, మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వారికి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, వక్తలు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది, కాబట్టి కావాల్సిన రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ తారక రామారావు గారికి మరొకసారి కరతాళాలు తలుపుతున్నాం, ఎందుకంటే సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది। మన వాళ్ళ ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన, మన కావాల్సిన బాధలు ఇన్నికి వచ్చిన BRS రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారికి మరొకసారి కరతాళాలు తలుపుతున్నాం, అందరూ స్వాగతం చెప్దాం। BRS पार्टी स्टेट लीगल सेल की जानिब से स्टेट आत्मा सम्मेलन प्रोग्राम को मुनक़िद किया गया था जल्दियार पर, जिसमें रियासती वज़ीर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कल्वा-कुंटला तारक रामाराव साहब खुद बानफ़्स रफ़ीज़ हाजिर रहे। मेहमान एजाज़ी के तौर पर B विनोद कुमार साहब, वाइस चेयरमैन तेलंगाना मनसूबे बंदी कमीशन, और हमारे कालोरी वेंकटेश साहब MLA अंबरपेट भी हमारे दरमियान में थे। आज तकरीबन 33 अजला से तमाम विकला यहाँ पर हाजिर हुए। हमारा यहाँ पर मकसद ये था कि हमारे जो मसाइल हैं इससे हमारी हुकूमत को हमारे वज़ीर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कल्वा-कुंटला तारक रामाराव साहब को वाकिफ़ करवाना था, और साथ ही साथ ये तमाम विकला मिलकर BRS की सपोर्ट के लिए एक ज़बरदस्त तरीके से तायद का ऐलान भी किए। और यहाँ से हम तमाम 119 असम्बली हल्क़े-जात में BRS पार्टी की उम्मीदवार की तायद के लिए मुहिम चलाएंगे और तमाम अजला को भी फिरेंगे, तमाम एक कॉन्स्टिट्यूंसी को फिरेंगे, और कल्वा-कुंटला चंद्र शेखर राव साहब को तीसरी बार हैट्रिक के तौर पर वज़ीर आला बनाकर हमारी रियासत में लाएंगे। इंशाअल्लाह BRS पार्टी जीतेगी, और तमाम विकला ये ठान लिए हैं कि हमारे सही हमदर्द और हकीकी कायद कल्वा-कुंटला चंद्र शेखर राव साहब हैं, और BRS पार्टी ही ऐसी हुकूमत है जो हिंदुस्तान में कहीं भी विकलाओं के लिए इतना काम नहीं हुआ जितना काम तेलंगाना रियासत में हुआ है, जहां पर वकीलों को इंश्योरेंस दिया गया, उनकी फैमिली को इंश्योरेंस दिया गया, और खुसूसन कोविड में भी बड़े पैमाने पर हमें इमदाद भी पहुंचाई गई। और आज कई विकला को लॉ ऑफिसर, दीगर ओहदों पर भी फाइज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम भी तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट फोरम की जानिब से 2 नुमाइंदगी रखे थे, दोनों रिप्रेजेंटेशन को वज़ीर IT कल्वा-कुंटला तारक रामाराव साहब ने एक्सेप्ट किया। हमने एडिशनल एडवोकेट जनरल के लिए नुमाइंदगी की थी, और ख़ास करके एक मुस्लिम जज जो 9 साल में तेलंगाना हाई कोर्ट में अब तक तकर्रुर नहीं हुआ, 2 बार
रियासती हुकूमत तो मरकज़ की सरकार को भिजाई थी, लेकिन मरकज़ की सरकार से उसको रिजेक्ट हुआ। लेकिन इस बार हमने ये ख्वाहिश की है इस बार दबाव बनाकर मरकज़ पर दबाव बनाते हुए एक मुस्लिम वकील को हाई कोर्ट का जज बनाया जाए। इसको भी एक्सेप्ट किया गया। इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है हमारे मसाइल भी हल होंगे और हमारी पूरी कोशिश भी रहेगी कि एक ही हमारे कायद है जो वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर साहब, जिनके ऊपर अगर मैं एक अशार कहूँ तो उनके ऊपर पूरा उसको वो होगा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को लेके चलो। कल्वकुंटला चंद्रशेखर साहब वो शख्सियत है जो पूरे ज़माने को, पूरी रियासत को, पूरे अक़ौम को, पूरे रिलीजन को, पूरे कास्ट को, पूरे प्रोफेशन को लेकर चले हैं। हम बेहद ममनू मशकूर हैं आपके वेलफेयर स्कीमात के, आपके इस रियासत में अमन के लिए, तरक्की के लिए, और हमको उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इसी तरीके से हम सबको साथ लेकर चलेंगे। इंशाल्लाह हम तीसरी बार आपको इस रियासत के वज़ीर आला के तौर पर पूरी ताईद के साथ मुहिम चलाएँगे और इंशाल्लाह आपको वज़ीर आला बनाएंगे इंशाल्लाह।